Hello dear students, today we will continue our chapter number 6, that is major landforms of the earth. This is part 2 of this chapter. Our main topic for today's video is mountains. So let's get started. A mountain is any natural elevation of the earth's surface. The mountains may have a small summit and a broad base. It is considerably higher than the surrounding areas. Some mountains are even higher than the clouds. As you go higher, the climate becomes colder. In some mountains, there are permanently frozen rivers of ice, and they are called glaciers. There are some mountains you cannot see as they are under the sea. Because of harsh climate, less people live in the mountain areas. Since the slopes are steep, less land is available for farming. So mountains क्या होते हैं? वो एक नेचुरल एलिवेशन होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर. दैट मीन्स उसको एलिवेटेड किया नहीं जाता है, वो खुद से ही नेचुरली एलिवेट हो जाता है. एंड इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरियाज. अपने सराउंडिंग एरियाज से, अपने नेबरिंग एरियाज से वो क्या होता है? हायर होता है. एंड इट हैज़ अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस. अगर आप उसकी पीक देखोगे तो वो स्मॉल होती है, स्मॉल समिट, और अगर आप उसका बेस देखोगे तो इट इज़ कंपैरेटिवली ब्रॉडर. तो स्मॉल समिट होती है और ब्रॉड बेस होता है. अगर हम वहाँ के क्लाइमेट की बात करें तो वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श है. बिकॉज आप जितनी भी हाइट पर जाते हो, जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड पर जाते हो, क्लाइमेट उतना ही कोल्ड होता जाता है. तो द क्लाइमेट इज़ हार्श, इसलिए वहाँ पर कम लोग रहते हैं. और वहाँ की स्लोप्स कैसे हैं? स्टीप स्लोप्स हैं. दैट्स वाई द लैंड इज़ ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर फार्मिंग. इसलिए लोग वहाँ पर फार्मिंग भी नहीं कर पाते हैं. इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, जिनको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं. परमानेंटली फ्रोजन होती हैं वो, इसलिए उनको हम स्टोर हाउस ऑफ वाटर भी कहते हैं. क्योंकि अगर वो मेल्ट होंगी तो अल्टीमेटली वो रिवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी एंड वी कैन यूज़ दैट वाटर. तो इसलिए हम उसको स्टोर हाउस ऑफ वाटर भी कहते हैं. और अगर हम बात करें उन माउंटेन्स की जिनको हम देख नहीं सकते क्योंकि वो अंडर द सी होते हैं, तो उसका एक एग्जाम्पल है मुआना किया. दैट इज़ इन हवाई एंड इट इज़ इन जापान. सो उसकी हाइट है 10,205, मोर देन द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट. क्योंकि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,850. तो फिर भी माउंट एवरेस्ट को हाईएस्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि हम अबव द सी लेवल काउंट करते हैं. अबव द सी लेवल अगर देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट है, पर वैसे अगर देखा जाए बिलो सी लेवल अगर हम काउंट करें तो मुआना किया हाईएस्ट है, क्योंकि उसकी हाइट है 10,205 और माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,850. Now we will talk about mountain ranges. Mountains may be arranged in a line known as range. The Himalayas, the Alps and the Andes are mountain ranges of Asia, Europe and South America respectively. Mountains vary in their height and shape. So when mountains are arranged in a line or a series or in a train, they are known as mountain ranges. Some of the mountain ranges are Himalayas, that is in Asia, the Alps, that is in Europe, and the Andes, that is in South America. And the Andes, that is in South America, is the longest mountain range. These mountains may vary in their heights and shape. And let us read why these mountains have different heights and different shape. There are three types of mountains: fold mountains, block mountains, and the volcanic mountains. The Himalayan mountains and the Alps are young fold mountains with rugged relief and high conical peaks. The Aravalli Range in India is one of the oldest fold mountain systems in the world. The Appalachians in North America and the Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevation. They are very old fold mountains. So first we will talk about fold mountains. Fold mountains are formed due to the folding of Earth's crust. तो जो अर्थ का क्रस्ट होता है वो टेक्टोनिक प्लेट से बना होता है, और जब वो प्लेट्स पास आती हैं और यू कैन सी व्हेन दे कम क्लोजर टू ईच अदर, तो जो अर्थ का सरफेस होता है वो ऊपर उठ जाता है एंड इट फोल्डेड. तो वो फोल्ड हो जाता है ऊपर उठ के एंड इट बिकम्स एलिवेटेड. उसी से क्या फॉर्म होते हैं? फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर द हिमालयन माउंटेन्स, द एल्प्स, द अरावलीज and the Ural Mountains. Next is block mountains. They are created when large areas are broken and displaced vertically. तो जब ब्रेक डाउन होकर कुछ पार्ट अपलिफ्टेड रह जाता है और कुछ पार्ट
लोअर हो जाता है, राइट। तो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स को हम हॉस्ट बोलते हैं और लोवर्ड ब्लॉक्स को हम ग्रेबन बोलते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर राइन वैली इन जर्मनी एंड वॉस्गिस माउंटेन इन फ्रांस। नेक्स्ट इज वॉल्केनिक माउंटेन्स। दे आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी और वॉल्केनिक इरप्शन। या तो कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तब वो फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान। Let us also study the uses of mountains. Mountains are very useful. They are a storehouse of water. Many rivers have their sources in the glaciers in the mountains. Reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. Water from the mountains is also used for irrigation and for the generation of hydroelectricity. The river valleys and terraces are ideal for cultivation of crops. Mountains have a rich variety of flora and fauna. The forests provide fuel, fodder, shelter, and other products like gum, raisins, etc. So, there are some of the important uses of mountains. First is the water. The glaciers are known as the storehouse of water. क्योंकि glaciers जब rivers में convert होते हैं तो we can use that water. Next is reservoirs are made and the water is harnessed for the use of the people. लोगों के use के लिए water को save किया जाता है. नेक्स्ट इज़ जो भी वाटर माउंटेन से आता है वो इरिगेशन पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। रिवर वैलीज और टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, क्योंकि वहाँ की जो लैंड है वो भी फर्टाइल होती है तो वहाँ पर अच्छे से क्रॉप भी ग्रो कर सकते हैं। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना की भी बहुत अच्छी वहाँ पर वैरायटी है। तो वहाँ की जो फ्लोरा है उससे हमें क्या मिल सकता है, फ्यूल मिलता है, फॉडर मिलता है, शेल्टर भी मिलता है और भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि गम और रेजिन्स। नाउ देर आर सम ऑफ द पिक्चर्स ऑन योर स्क्रीन. यू हैव टू कैटेगराइज देम एज द माउंटेन्स. कौन सी पिक्चर कौन सा माउंटेन डिपिक्ट कर रही है, यू हैव टू टेल दैट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.